Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn design of IC engine. MCQ based on design of IC engine. 1. The maximum temperature in the IC engine cylinder is of the order of 500 to 1000 degree, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500. So correct answer is option D, which is 2000 to 2500 degrees Celsius. Question number 2. In compression ignition engine, swirl denote a haphazard motion of the gases in the chamber, rotatory motion of the gases in the chamber, radial motion of the gases in the chamber, या none of the above. So option B is the right answer, which is rotatory motion of gas in the chamber. Okay. Next is the pressure at the end of the compression in the case of diesel engine is the order of 6 kg per centimeter, 12 kg per centimeter, 20 kg per centimeter या 35 kg per centimeter. So right answer is 35 kg per centimeter. ठीक है. Question number 4. In a 4-stroke cycle diesel engine, the exhaust valve open at 30 degree before BDC and close at 10 degree after TDC. Open at 30 degree after BDC and close at 10 degree before TDC. Open at BDC and close at TDC. May open and close anywhere. So correct answer is option A, which is open at 30 degree before BDC and close at 10 degree after TDC. An engine indicator is used to determine the following: speed, temperature, volume of cylinder, MEP and IHP. So right answer is option D, which is MEP and IHP. In a 4-stroke cycle petrol engine, the compression start at 40 degree after BDC and end at 30 degree before TDC. Starts at 40 degree before BDC and end at 30 degree after BDC. Start at BDC and end at TDC. May start and end anywhere. So right answer is option A, which starts at 40 degree after BDC and end at 30 degree before TDC. Next is question number 7. The probability of knocking in diesel engine is increased by high self ignite temperature, low volatility, higher viscosity, all of these. So right answer is all of these. Option D is the right answer. Next is the mean effective pressure obtained from engine indicator indicates the maximum pressure del of minimum pressure, instantaneous pressure at any instant, average pressure. So right answer is option D, which is average pressure. The ignition quality of petrol is expressed by centate number, octane number, calorific value, all of these. So right option is option B, which is octane number. Next is question number 10. If the temperature of the intake air in internal combustion engine increases, then its efficiency will remain same, decrease, increase, या none of the above. So answer is option B, which is decrease. The brake power is the power available in the engine cylinder, at the crankshaft, at the crank pin, या none of these. So answer is option B is the right answer, at the crankshaft. The air fuel ratio of the petrol engine is controlled by carburetor, injector, governor, या none of these. Answer is option A is the right answer, which is carburetor. If the compression ratio in IC engine increases, then its thermal efficiency will decrease, increase, remain same, या none of these. It will increase. Option B is the right answer. Next is the thermal efficiency of an standard Otto cycle for a compression ratio of 5.5 will be 25%, 50%, 70%, या 100%. It will be a 50%. Option B is the right answer. The thermal efficiency of diesel engine is about 15%, 30%, 50%, या 70%. So right answer is option D, which is 70%. If petrol is used in a diesel engine, then lower power will be produced, efficiency will be low,
higher knocking will occur, black smoke will be produced. So right answer is option C, which is higher knocking will be occur. The dash engine can work on a very lean mixture of fuel, spark ignition, compression ignition, both A and B, and none of these. So answer is option B is the right answer, which is compression ignition. A diesel engine during suction stroke draw air only, diesel only, a mixture of diesel and air, yeah, none of these. So option A is the right answer, which is air only. A petrol engine has a compression ratio from 6 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, 25 to 40. So petrol engine compression ratio is from 6 to 10. This answer you can get from data book of IC engine from KK. Okay. Next is the ratio of brake power to indicate power is called mechanical efficiency, overall efficiency, indicate thermal efficiency, या volumetric efficiency. So right answer is mechanical efficiency is known as the ratio of brake power to indicate power. Next is if the speed of engine is increased, the indicate power will increase, decrease, remain same, या none of these. So right answer is it will increase. Next is if petrol engine the delay period in petrol engine the delay period is of the order of 0.001 second, 0.002 second, 0.003 second, 0.004 second. So in petrol engine the delay period is of 0.002 second. A diesel engine is dash as compared to petrol engine, both running at rated load, equal efficient, less efficient, more efficient, या none of these. And the answer is more efficient. Option C is right answer. The pressure at end of the compression in petrol engine is approximately 10 bar, 20 bar, 25 bar, 35 bar. So answer is option A, which is 10 bar. A diesel engine has 1 valve, 2 valve, 3 valve, 4 valve. So diesel engine has 3 valve. Option C is the right answer. Diesel fuel compared to petrol is less difficult to ignite, just about the same difficult to ignite, more difficult to ignite, highly instability. So right answer is more difficult to ignite. Option C is the right answer. Next question, during idling a petrol engine require dash mixture, lean, rich, chemical correct, या none of these. So it requires rich mixture. Option B is the right answer. Next, diesel cycle is also known as constant volume cycle, constant pressure cycle, constant temperature cycle, या none of these. So option B is the right answer. Diesel cycle is also known as constant pressure cycle. In a diesel engine, the fuel is ignited by a spark injected fuel, heating resulting from compressing air that is supplied for combustion या ignition. So option C is the right answer. There are dash types of liner, 1, 2, 3 या 4, or there are two types of liner, which is dry liner and wet liner. So option B is the right answer. Question number 31. If diameter of cylinder of bore is 120 mm, मतलब यहाँ पे अपन को diameter दिया है, D दिया हुआ है, ठीक है, diameter D दिया है, D is equal to 120 mm, then the thickness of cylinder will be information not sufficient 7 mm, 12 mm या 6 mm. तो यहाँ पे पूछा थिकनेस ऑफ सिलेंडर, तो थिकनेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू 0.045 इंटू कैपिटल D प्लस 1.6. तो कैपिटल D यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 120 mm, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आंसर आ जाएगा 7 mm. ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. इफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर, यहाँ पे भी D दिया हुआ है 120 mm, ठीक है, देन थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर, यहाँ पे थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर पूछा है, तो ऑप्शन है ये 4. तो ड्राई थिकनेस ऑफ ड्राई लाइनर का फॉर्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू 0.03 D टू 0.035 D. तो इसके रेंज में कोई भी सिलेक्ट कर लेना वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 0.03 D सिलेक्ट किया हूँ, तो आंसर आ जाएगा 3.6 mm. ठीक है, इसमें D का वैल्यू पता है 120 mm है,
तो सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर विच इज़ 3.6 mm। ये फॉर्मूला के डाटा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट यूज्ड इज 20 mm, देन फाइंड द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन आउटर डायमीटर ऑफ लेंच एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, अपन को फाइंड करना है रेडियल डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच में, आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड, इन दोनों के बीच का रेडियल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, R अपना रेडियल डिस्टेंस हो गया D+6 टू 1.5D, ठीक है। तो इसमें से D+6 अपन को यहाँ पे बोल्ट का डायमीटर दिया है, नॉमिनल डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो D+6 मतलब 20+6 तो 26 आ जाता है, ठीक है। दो फार्मूला है दोनों में, ठीक है। और ये 1.5D 1.5 इंटू 20 करेगा तो 30 mm मिल जाए, तो 26 भी आंसर चलेगा, 30 भी चलेगा। तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया है 26 to 30, तो ऑप्शन में ये 28 आता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैप इफ डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन इज 55 mm। डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन दे दिया, मतलब स्मॉल डी दे दिया, डायमीटर 55 mm दिया है, तो विड्थ ऑफ कैप पूछा है, तो विड्थ ऑफ कैप का फॉर्मूला आ जाएगा LCB या BCB बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 0.8 इंटू डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन, ठीक है। तो 0.8 इंटू 55 करेंगे तो 44 आंसर मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूला डिज़ाइन डाटा बुक के में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाता है 44, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द एरिया ऑफ पिस्टन। यहाँ पे एरिया ऑफ पिस्टन फाइंड करना है, ठीक है, इन कनेक्टिंग रॉड। इस बोर्ड डायमीटर मतलब कैपिटल डी यहाँ पे दिया हुआ है, 115 दिया, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ पिस्टन निकालना है, तो एरिया ऑफ पिस्टन का फॉर्मूला आ जाता है AP इक्वल टू π/4 इंटू D² इंटू 10⁻⁻⁶, और ये फार्मूला के पेज नंबर 19 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल डी यहाँ पे 115 है, तो ये पुट कर देना, तो सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आंसर मिल जाएगा 0.01038 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड नंबर ऑफ पिस्टन रिंग इफ बोर डायमीटर, मतलब यहाँ पे भी कैपिटल डी दिया हुआ है 145 mm, तो पूछा क्या है नंबर ऑफ पिस्टन रिंग। तो नंबर ऑफ पिस्टन रिंग का फॉर्मूला आ जाता है, स्मॉल एन डिनोट करता है नंबर ऑफ पिस्टन रिंग, उसका फॉर्मूला है 0.4 अंडर रूट कैपिटल डी, तो कैपिटल डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो आंसर मिल जाएगा 4.816, और ये फार्मूला के पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा, ठीक है। के पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा। तो अपना राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर 4.816। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ द डायमीटर ऑफ पिस्टन इज डी, मतलब पिस्टन का डायमीटर अगर डी रहा तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पिस्टन रिंग ग्रूव यूजुअली ऑफ द रेंज फॉर डीजल इंजन विल बी। इसके लिए के का बुक में एक पेज नंबर पे सारे फॉर्मूलेस दिए हुए, वहाँ पे मतलब रेंज दिया हुआ है, डीजल के लिए अलग दिया है, पेट्रोल के लिए अलग 2 कॉलम बना हुआ है, उस पेज पे देख लेना। इसका रेंज क्या आता है डीजल के लिए, फर्स्ट पिस्टन रिंग ग्रूव के लिए डीजल के लिए क्या आता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है 0.112 0.2 डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ द आउटर डायमीटर ऑफ पिन इज DPO, ठीक है। तो इनर डायमीटर ऑफ पिन का रेंज क्या रहेगा, वो भी पेट्रोल इंजन में, ठीक है। आउटर डायमीटर ऑफ पिन ये है, तो इनर डायमीटर ऑफ पिन का रेंज क्या रहेगा पेट्रोल इंजन में। तो इसके लिए भी वही पेज पे आपको फॉर्मूला के पेज पे मिल जाएगा, के का डाटा बुक है उसी में मिल जाएगा ये फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ साइड क्लियरेंस ऑफ पिस्टन रिंग एट लोअर ग्रूव्स। ये भी उसी पेज पे मिल जाएगा, एकदम नीचे में एंड कॉर्नर पे नीचे में। 0.3 to 0.9 mm, 0.1 to 0.5 mm, 0.15 to 0.2 mm, 0.08 to 0.12 mm। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द टोटल लोड ऑन दिस स्टड, मतलब टोटल लोड फाइंड करना है, स्टड पे कितना लोड है टोटल। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ मेन लोड ऑफ थ्रेडेड जॉइंट इज 0.2, ठीक है 0.2, मतलब ये x का वैल्यू अपन को दिया है 0.20। मैक्सिमम गैस फोर्स इज एफ मैक्स दिया हुआ है 6146.86 न्यूटन, और प्री लोडिंग फोर्स भी दिया हुआ है 24,588.88 न्यूटन। ठीक है, तो इसका फार्मूला टोटल लोड ऑन दी स्टड, इसका फार्मूला है एफ टी इजगल टू एक्स। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जो है 0.20। ठीक है, एफ मैक्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एफ पी एल आ जाता है, जो प्री लोडिंग फोर्स है वो भी दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज पुट कर लेना और आंसर मिल जाएगा। तो अपना राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइंड मिनिमम लाइनर थिकनेस। ठीक है, फाइंड मिनिमम लाइनर थिकनेस ऑफ लाइनर फॉर 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड वर्टिकल डीजल इंजन फ्रॉम बिलो डाटा। बोर डायमीटर दिया है, मतलब कैपिटल डी अपन को दिया हुआ है 140 mm। डिज़ाइन स्ट्रेस दिया हुआ है, मतलब एस डी जो भी आप करो, जो भी एस डी या सिग्मा जो भी डिनोट करे आप। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेस भी दिया है। मैक्सिमम गैस फोर्स, गैस प्रेशर दिया है, सॉरी मैक्सिमम गैस प्रेशर दिया है जो पी मैक्स होएगा। ठीक है, पी मैक्स भी अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर आ जाता है डायमीटर दिया हुआ है, डिज़ाइन स्ट्रेस भी दिया हुआ है, पी मैक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला है मिनिमम लाइनर थिकनेस का फार्मूला है, अपन को फाइंड करना है मिनिमम लाइनर थिकनेस फाइंड करना है। ठीक है, तो मिनिमम लाइनर का फार्मूला आ जाता है के पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा, ये बुक के डाटा बुक के पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। तो इसका फार्मूला d/2 इंटू एस डी प्लस 0.4 पी मैक्स एस डी माइनस 1.3 इंटू पी मैक्स हाफ रेस टू हाफ -1। तो इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देना तो आंसर मिल जाएगा 3.6174 mm। तो 3.6174 mm ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर। नंबर 43, डिटरमाइन नंबर ऑफ बोल्ट ऑल स्टर्ड फॉर अ डिजाइन ऑफ 4 स्ट्रोक cylinder water cooled and vertical petrol engine if bore diameter is 146। मतलब यहाँ पे कैपिटल डी दिया है, क्या बोला है नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट या स्टड निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, 0.015 इंटू टी प्लस 4, डायमीटर दिया हुआ है 146 दिया है। ठीक है, इसमें कर लेना मल्टीप्लाई और सब्स्टिट्यूट कर लेना तो 6.19 मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इफ़ द डायमीटर ऑफ पिस्टन इज डी देन लेंथ ऑफ स्कर्ट इज यूजुअली ऑफ द रेंज ऑफ पेट्रोल इंजन इज। ये भी के का एक पेज नंबर है जहाँ के बुक में एक फॉर्मूला लिस्ट है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल का अलग अलग रेंज दिया हुआ है सब, तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, वहाँ पे इसका भी वैल्यू पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है which of the following expression is used to find the length of small end of connecting rod। मतलब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है जो फाइंड करता है स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो इसमें से आता है ऑप्शन डी है जो 0.3 to 0.45 इंटू कैपिटल डी, ये फार्मूला यूज़ होता है लेंथ ऑफ स्मॉल एंड फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फाइंड थिकनेस ऑफ वाटर जैकेट थिकनेस यहाँ पे फाइंड करना है फॉर वाटर कूल्ड इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर
वाटर कूल वर्टिकल डीजल इंजन। इफ बोर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे भी वही कैपिटल डी दिया हुआ है, ठीक है। थिकनेस ऑफ वाटर जैकेट का फॉर्मूला मिल जाएगा के पेज नंबर 13, डाटा बुक के का 13 पे मिल जाएगा ये फॉर्मूला। यहाँ पे डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा 6.4 mm। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है।